Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, all of you. Now I'm going to Good meet afternoon, ma'am. everyone. Please start the class. Good afternoon, ma'am. Start the class. Afternoon, ma'am. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. So everyone muted. So as you know, today is your English class. Okay. I have muted all of you. Mute all. Nobody will speak now. You will get 5 minutes to speak. Last 5 minutes. So as you know, today is our English class and we will continue the same or previous topic, Macbeth. Please, those who are having book of English, please open it, because due to network connection, due to network problem, in your previous class, you was not able to understand clearly the story of Macbeth. So I know नेटवर्क इशू की वजह से आपको वो स्टोरी समझ में नहीं आई थी. मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर. This is your third prose number 3. Prose number 3, Macbeth. So I think you have opened your books. Now I'm going to explain the story written by William Shakespeare. William Shakespeare was a very renowned English literature, English, those who can write, who write or wrote many proses, many stories of English. विलियम शेक्सपियर ने काफी स्टोरीज लिखी हैं इंग्लिश की, काफी प्रोजेस लिखी हैं. सो बहुत ही फेमस पर्सन है विलियम शेक्सपियर. सो उसी की स्टोरी का नाम है मैकबेथ. मैकबेथ इज अ पर्सन. मैकबेथ के बारे में उसने क्या लिखा है? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट. Macbeth is introduced in the play as a brave hero. Please listen carefully. Macbeth in the play, ये जो अभी आप स्टोरी पढ़ रहे हो, जो प्ले पढ़ रहे हो, he is a brave hero whose victory wins him great favor from the king. So उसके जीतने पे उसको, उसका जो किंग है वो उसको फेवर करता है, उसको कुछ इनाम देता है, बिकॉज ब्रेव हीरो है. एंड वो स्टार्टिंग में क्या करता है, वो वॉर पे जाता है. मैकबेथ is the Thane of Glamis. So Macbeth को टाइटल मिला है Thane of Glamis. Please underline in your book Thane of Glamis. ये आपको इंटरनल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो, that which title Macbeth received from the king. So उसको क्या टाइटल दिया गया है, उसको क्या नाम दिया था किंग ने? Thane of Glamis, who is led to wicked thoughts by the prophecies of 3 witches. और ये टाइटल उसको विचेस ने दिया है, किंग्स ने नहीं दिया है. 3 विचेस. और ये विचेस की जो स्टोरी है वो अभी हम पढ़ेंगे मैकबेथ में. 3 विचेस, जो 3 डायन है इसमें. especially after the prophecy that he will be made Thane of Cawdor comes true. पहले उसको टाइटल मिला था Thane of Glamis का, एंड बाद में आफ्टर द वॉर मैकबेथ को टाइटल मिला Thane of Cawdor, C-A-W-D-O-R, Cawdor. And this is further strengthened by his wife's obsessive persuasion. So Macbeth की वाइफ भी थी, but he is not a virtuous one. He is easily tempted into murder to fulfill his ambitions. And once he commit his first crime,
मैकबेथ जो है वो क्या करता है, फर्स्ट क्राइम करता है अपनी लाइफ का, एंड ही इंडल्जेस इन फर्दर क्राइम्स विद इंक्रीजिंग कैपेसिटी। आगे भी वो क्राइम करता रहता है। हिज सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इज मर्डर। ओके, वो उसको कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता था मैकबेथ को, वो सिर्फ मर्डर से ही उसका सोल्यूशन निकालता था। However, Macbeth is never comfortable in his role as a criminal and is constantly ridden with guilt. ओके, हमेशा वो मर्डर तो कर देता था अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट हमेशा वो गिल्ट में रहता था। आर यू एबल टू अंडरस्टूड और आर यू एबल टू लिसन मी क्लियरली? प्लीज रेज योर हैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है। रेज योर हैंड्स। यस, ओनली 4 हैज रेज्ड। यस। सो वो एक क्रिमिनल, अपना जो एक मैकबेथ जो है वो क्रिमिनल होते होते परेशान हो गया था। नाउ ही इज कॉन्स्टेंटली रिडन विद गिल्ट। उसको अपने आप में जो थी अपनी गलती महसूस हो रही थी। सो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है स्टोरी का वो है बेंको। बेंको इज अ ब्रेव नोबल जनरल हुज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द विचेस प्रोफेसी विल इनहेरिट द स्कॉटिश थ्रोन। सो बेंको जो है वो भी एक ब्रेव हीरो था। Macbeth and Banquo. Banquo was a brave hero and whose children, according to the witches, will inherit the Scottish throne. उसके बच्चों को स्कॉटिश क्या है? स्कॉटलैंड का नाम पता है ना आपको? स्कॉटलैंड इज अ कंट्री। सो उसके बच्चे जो थे वो स्कॉटिश थे। And since he chooses to take a path in which ambition lead to betrayal and murder, so वो भी मैकबेथ की तरह सेम रास्ता जो है वो सिलेक्ट करता है मर्डर का, टू बी अ क्रिमिनल। ही डिड नॉट फॉलो, ही इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू मैकबेथ। मैकबेथ का एक रिमाइंडर था, मतलब उसका फ्रेंड था। एंड ही डिड नॉट फॉलो बैंकोज रिएक्शन टू द विचेस प्रोफेसी। ओके, सो जो विचेस हैं स्टोरी में वो तीनों के लिए काफी हेल्पफुल रही हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Yes, and when Macbeth and Banquo were returning from war, क्योंकि दोनों क्रिमिनल थे और दोनों जब वॉर से वापस आ रहे होते हैं, 3 strange witches appeared out of them. उनके सामने 3 विचेस आके खड़ी हो जाती हैं। तीनों अब लड़ाई करके वापस आ रहे हो, दोनों लड़ाई करके वापस आ रहे होते हैं, बैंको एंड मैकबेथ। सो 3 विचेस, 3 जो एक चुड़ैल आप जिसको बोल सकते हो, वो उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, दोनों के सामने। दे डांस्ड अराउंड अ लार्ज कॉर्डन एंड सल्यूटेड मैकबेथ। उनके सामने डांस करना शुरू कर देती हैं तीनों विचेस और मैकबेथ को सल्यूट करती हैं at the Thane as the Thane of Glamis, और बोलती हैं उनको Thane of Glamis, the Thane of Cawdor and the future king of Scotland. तीनों विचेस उसको बोलती हैं, you are a Thane of Glamis, you are a Thane of Cawdor, and in future you are the king, you will be the king of Scotland. They addressed Banquo as lesser than Macbeth. So Banquo भी वहां खड़ा होता है और मैकबेथ से उसको कम रिस्पेक्ट देती हैं वो। Yet greater, and added, he would father the future line of kings, though he would never be one himself. So Macbeth was puzzled by the second and third witch. Second and third witch से क्या हो जाता है, वो जो मैकबेथ है वो सेकंड और थर्ड विच से परेशान हो जाता है। एंड मैकबेथ, बिकॉज ही वॉज द थेन ऑफ ग्लैमिस नॉट द थेन ऑफ कार्डर, वो बोलता है कि मैं तो थेन ऑफ ग्लैमिस हूँ, बट मुझे ये थेन ऑफ कार्डर क्यों बोल रही हैं तीनों विचेस। टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड वॉज नॉट ए पॉसिबिलिटी। अब वो बोलता है कि मैं तो स्कॉटलैंड का किंग भी नहीं हूँ। सिंस किंग ड्यूकन वॉज अलाइव, क्योंकि अभी भी स्कॉटलैंड का जो किंग था उसका नाम था किंग ड्यूकन, वो अभी भी जिंदा है। फिर विचेस ऐसा क्यों बोल रही हैं मैकबेथ को that you will be the king of Scotland, and put aside the horror of killing his king. वो इसलिए बोल रही हैं कि मैकबेथ स्कॉटलैंड के किंग का मर्डर करेगा।
so that Macbeth will be the new king of Scotland. After ascending the throne, Macbeth held a feast for all his nobles. और जब वो उसका मर्डर कर देता है, मैकबेथ स्कॉटलैंड के किंग का मर्डर करता है, सो वो क्या करता है, सब लोगों के लिए एक फीस्ट अरेंज करता है. फीस्ट होता है मे बी डिनर और मील, जिसको आप इनविटेशन बोलते हो, खाने पे सबको इनवाइट करता है. Banquo, whom he had cleverly arranged to be a murderer, appeared as a ghost, smeared with blood. और बैंको जो है वो उसके सामने खून से लथपथ, smeared with blood, आके खड़े हो जाता है. To take his seat at the table, क्योंकि बैंको को भी उसके साथ फीस्ट जो है वो खाना है, डिनर. सो बैंको जब आके बैठता है टेबल पे, सो ही was smeared with blood, खून से भरा होता है पूरी उसकी बॉडी. Upon seeing this, Macbeth's horror knew no bounds and he began to go mad with fear. So उसको देख के डर जाता है Macbeth, और horror में, horror means डर में, कि go mad with fear, डर में जो है वो पागल हो जाता है Macbeth. Lady Macbeth began to have nightmares about the murder of King Duncan. अब Lady Macbeth जो उसकी wife है, वो क्या करती है, begin to have nightmares. Nightmare means सपने, उसको सपने आने शुरू हो जाते हैं किंग डुकन के मर्डर के. She dreamed that she had blood marks on her hands all the time, marks that would never come off. ऐसे निशान उसके हाथों पे आ जाते हैं, उसको सपना आता है जो मार्क्स ब्लड के उसके हाथों से जाते ही नहीं है. She became depressed and unhappy and finally took her own life. So क्या करती है, अपनी जान जो है वो ले लेती है, सुसाइड कर लेती है. Then towards the end of the play, a gruesome battle took place at Macbeth's castle. So मैकबेथ के कैसल में, जहां वो रहता है, उसका कैसल, उसका जो फार्म हाउस है, वहां पे एक बैटल जो है वो होती है, एक लड़ाई होती है. Confronted by Macduff, Macbeth realized that his end was near. अब उसको लगता है कि मेरा जो एंड है, मेरा जो मरना है वो फाइनल हो गया. किसको लगता है, मैकबेथ को, बिकॉज उसके कैसल में, उसके घर पे ही एक वॉर शुरू हो जाती है. एंड दैट ही शुड नेवर हैव ट्रस्टेड द विचेस. अब वो बोल रहा है कि अब आने वाले टाइम पे वो कभी भी विचेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा. एंड दिस इंसिडेंट सजेस्ट दैट perhaps Macbeth regretted his actions. So इससे हमें पता चलता है कि मैकबेथ को अपने एक्शंस पे रेग्रेट फील होता है, गिल्ट फील होता है कि उसने जो तीनों विचेस पे ट्रस्ट किया था वो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विचेस ने बोला था यू मे किल द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सो दैट यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ओके, सो उसने वही किया, उसने मर्डर किया उसका, एंड बाद में फिर उसके सपने में, उसके नाइटमेयर्स में जो मैकबेथ है वो आता रहा. सो दिस इज अबाउट द स्टोरी. मैंने आपको शॉर्ट समरी बताई है, लॉन्ग समरी नहीं बताई है. यू मे रीड द चैप्टर क्लियरली. आप इस प्रोज को अच्छे से पढ़ो. अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन आंसर जब मैं सेंड करूंगी, क्वेश्चन आंसर्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. स्टोरी बेशक ट्विस्टेड हो सकती है, रीड करने में स्टोरीज ट्विस्टेड हो सकती है, कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट इन क्वेश्चन आंसर में आपको समरी से ही आंसर लिखने होते हैं, और वही समरी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वैसे ही आंसर आपको आएंगे कि उसने किस किंग को जो था मर्डर किया था. एट द एंड वो रेग्रेट फील करता है कि नहीं करता है. सो डोंट वरी अबाउट द प्रोज रीडिंग, ये सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. मैंने आपको शॉर्ट समरी बताई है, लॉन्ग समरी नहीं बताई है. अराउंड 50 to 80 वर्ड्स और 100 वर्ड्स की समरी मैंने आपको बताई है, बट चैप्टर इज ऑफ 300-400 वर्ड्स का होता है. प्रोज जो है वो 3-4 पेजेस का होता है, बट मैंने आपको समरी 80 to 70 वर्ड्स में बताई है. ओके, सो दिस इज इजी फॉर यू, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस इजी स्टोरी प्लीज रेज योर हैंड्स. मैकबेथ की, शेक्सपियर की स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई और एंड में उसको रेग्रेट फील हुआ, प्लीज रेज योर हैंड्स. Okay, and I know that you have written the questions which I have sent you yesterday. Daffodils के भी question answers मैंने send कर दिए थे आपको. Then diversity question answers I had sent you. Please note down, those who has not written, please note down in your notebook so that
today I'll send you the Macbeth question answers. Okay? Book exercise I'll definitely send you by clicking the photograph from the book. Okay? So those who have any doubt, you can ask me. I'm going to unmute you for 5 minutes. So you can ask. So here, just give me 1 second to unmute you. Yes, I have unmuted everyone. Excuse me, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Yes, please say your name. Who is asking the question? Excuse me, ma'am. Ma'am, I was unable to understand the chapter. Which chapter? Excuse me, ma'am. I was unable to understand the chapter because there was so much of What? question answers और स्कूल पे जब भी था Excuse me, ma'am. What is the meaning of? मैम क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज सेंड कर दोगे? Exercise I'll send you for both English as well as SST. ये हमारा स्कूल है, हम स्कूल में Listen, in our next class we will study about the grammar topics. Excuse me, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Yes. ऑफिस Okay, ma'am. Shall I end up the meeting? Yes, ma'am. Because we had No, to ma'am. the same No, topic. ma'am. No, Yes, ma'am. In our previous class, same topic we have studied, and today we have studied the same topic. So that's why we are ending the Excuse me, meeting. ma'am. Thank you very much for the class. Ma'am, thank you for the Class, class. class, Thank class. you, ma'am, for the class. Thank you for the class. Thank you, ma'am, for the class. Excuse me, ma'am. Thank you, ma'am, for the class. Okay. Thank you, ma'am, for the class. Thank you, ma'am, for the class. For the class. Thank you, ma'am, for the class. For the class. Thank you, ma'am, for the class. Thank you, ma'am, for the class. Thank you, ma'am, for the class.